students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is playing with text MS Word 2016. Previous chapter में हम जान चुके हैं कि MS Word एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जिसमें ना सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, बल्कि उन्हें मॉडिफाई भी करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कैसे हम टेक्स्ट को इसमें मॉडिफाई करते हैं। Things to learn editing in Word. Find and replace command word count. Adi and Adya, Robo, we know that how to type text in MS Word, but our teacher says that you should also make changes in type text in MS Word. Robo, of course, my friends, let me help you here. Changing text means editing text. There are several easy ways to edit your text in MS Word. Let's learn how. तो अब हम जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे हमने जो भी हमारा टेक्स्ट टाइप किया है MS वर्ड में उसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। Editing in Word. Editing is the process of making changes in existing text. For editing, the text must be selected. Editing text includes inserting text, inserting a blank line, moving, deleting and arranging text as per requirement. तो editing एक process है जिसके थ्रू आप अपने existing text को क्या करते हो, चेंज करते हो। एडिटिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें आप अपने टेक्स्ट के साथ साथ जो लाइंस हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, सेंटेंस हैं, इनको भी आप एडिट कर सकते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट टू ऐड new text to an already existing document. Follow these steps. Step 1, place the cursor to the right side of the character where you want to insert the text. Step 2, type the text. Step 3, the existing text which is placed after the cursor will be shifted to the right side. तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे आप टेक्स्ट को इंसर्ट करते हो। इसके लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट के लिए आप उस कर्सर को प्लेस करेंगे अपने कैरेक्टर के राइट साइड में, जिसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। देन आप टाइप करेंगे अपने टेक्स्ट को और आपका जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा आफ्टर द कर्सर विल बी फिनिश्ड टू द राइट साइड। You should know to delete a character. Select the text and press the delete key from the keyboard or erase the text using the backspace key. अगर आप किसी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे डिलीट की को, और कीबोर्ड से या फिर उस टेक्स्ट को इरेज करने के लिए आप बैकस्पेस की प्रेस करेंगे। Moving the text. Moving the text means to cut a piece of text from one location and paste it at another location. The cut and paste operations are used for moving the text. The steps to use the cut and paste options are given below. Step 1, select the text you want to move. Step 2, click on Home tab. Step 3, click on Cut option to move the text under the clipboard group. Step 4, go to the required place where you want to paste the text. Step 5, now click on the paste options from the clipboard group. अब अगर आपको अपने टेक्स्ट की लोकेशन चेंज करनी है या उसकी कॉपी आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पहले कैसे आप अपने टेक्स्ट को हटा करके उसकी जो लोकेशन है उसे चेंज करते हैं। आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे आप मूव करना चाहते हैं। देन आप होम टैब पे जाएंगे, देन आप क्लिक करेंगे कट ऑप्शन को ताकि आप उस टेक्स्ट को मूव कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप रिक्वायर्ड प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे आप उसके पेस्ट करना चाहते हैं। देन आप क्लिक करेंगे पेस्ट ऑप्शन को फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह पे जहाँ पे आप चाहते थे वो पहुँच जाएगा। Subject integration given below is the story of the thirsty crow in a jumbled manner. Type the sentence in a Word document. Press enter at the end of every sentence. Now recognize these sentences using the cut paste command. तो आपको यहाँ पे थर्स्टी क्रो की स्टोरी दी गई है, आपको कट और पेस्ट कमांड को यूज करते हुए इनको रीऑर्गेनाइज करना है। Copying the text. Copying the text means creating a duplicate of the original text and leaving the original as it is. The copy operation does not affect the original text that remains at its position in the document. The steps to use the copy paste options are given below. Step 1, select the text you want to copy. Step 2,
click on Home tab. Step 3, click on Copy option to copy text from the clipboard group. Step 4, go to the required place where you want to paste the text. Step 5, now click on the paste options from the clipboard group. अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी का मतलब होता है किसी टेक्स्ट का एक और वर्जन बनाना, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। देन आप होम टैब पे जाएंगे, अगेन आप क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन पे फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और उसके बाद आप रिक्वायर्ड प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे आप उस टेक्स्ट की कॉपी बनाना चाहते हैं या उसको पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे और आपका जो टेक्स्ट है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। Think and share. You want to copy a block of text from your document to another document. How can it be done? अगर आपको अपने block of text की copy करनी है तो आप कैसे करेंगे? Quick tips. Use Ctrl+C for copy text, Ctrl+X for move cut text. Use Ctrl+V for paste text. तो यहाँ पे आपको कट, कॉपी और पेस्ट के कुछ शॉर्टकट कीज दी गई है। Undo and redo command. Undo command is useful to cancel the effect of the last action taken in the document. Click on undo button on the quick access toolbar. Redo command reverses the action of the undo command. This command can be used only if we have used the undo command. Click redo button to reverse the action of the undo command. तो अंडू कमांड क्या होते हैं? अंडू कमांड आपका किसी भी जो इफेक्ट होता है उसको कैंसिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और रिडू कमांड जो होता है ये आपके अंडू कमांड को रिवर्स करने के लिए, उसके एक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। Simplified learning. Have a discussion on the topic. What is so special about undo option? तो इस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। Now quick tips. Use Ctrl+Z to undo an action. Use Ctrl+Y to redo an action. तो यहाँ पे इसके भी आपको शॉर्टकट कीज दी गई हैं। You should know clipboard is a temporary and hidden storage to save most recently cutted copied data. Critical thinking. Can we cut and copy any data on different location as many time as we wish? तो क्या आप जितना मर्जी चाहे उतना अपने डेटा को कट एंड कॉपी कर सकते हैं? Find and replace command. In Word we use find command to search for a particular word in a document, and replace command replaces a specific word or text with other word in a document. To find a particular word and replace it with another word in a document, follow the given steps. Step 1. Click on the Find button in the editing group of the Home tab. A navigation window will appear towards the left side of the document window. Step 2. Type the word that has to be found in the search box of the navigation window. Step 3. The searched words will be highlighted in the document with yellow color. Step 4. To replace the word with another word, click on Replace button in the editing group of the Home tab. Step 5. The Find and Replace dialog box will appear. Step 6. Type the word that has to be replaced in the Replace with box and click on the Replace All button. अब हम जान लेते हैं बच्चों कि कैसे आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो, उसे रिप्लेस कर सकते हो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड से। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को किसी भी डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना होता है एक स्पेसिफिक वर्ड से, तो इसके लिए यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे फाइंड बटन पे, जो कि आपको एडिटिंग ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक नेविगेशन विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपको उस वर्ड को टाइप करना चाहते हैं जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, तो आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे उस वर्ड का नाम। सर्च वर्ड जो है वो उस वर्ड को हाईलाइटेड कर देगा येलो कलर में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद उसको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे और आपको उस बटन को जो भी आपको वर्ड वहाँ पर टाइप करना है तो उस वर्ड को आप रिप्लेस बॉक्स में टाइप करेंगे, और फिर आप अगर एक को रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक को रिप्लेस करेंगे। अगर आप रिप्लेस ऑल जगह पे करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल का बटन दबाएंगे।
Quick tips: use Ctrl plus F to find text, use Ctrl plus H to replace text. इसको आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं. अगर आप Ctrl plus F दबाते हैं तो आपको वो फाइंड टेक्स्ट करने में हेल्प मिल जाती है. अगर आप Ctrl plus S दबाते हैं तो वो रिप्लेस टेक्स्ट करने में आपकी हेल्प करता है. Subject integration: type the following text in Word, find the word respire in text and replace with breath. तो आपको क्या करना है, ये जो फॉलोइंग आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आपको टाइप करना है, फिर आपको रेस्पायर को फाइंड करके उसको रिप्लेस करना है ब्रेथ से. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक: while inserting text in Word you might have noticed some words underlined with red or blue color. These wavy colored lines identify the spelling and grammatical mistakes in your document. The red wavy line shows the spelling mistakes and the blue wavy line shows the grammatical mistake. अब कभी कभी क्या होता है, हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो हम टाइप करते करते आगे चले जाते हैं, लेकिन जो वर्ड है वो हमें हमारी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में भी बताता है. अगर हमसे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई है तो उसके नीचे आपने देखा होगा रेड कलर की वेवी लाइन बन जाती है. अगर हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ हो जाती है तो उसके नीचे आपकी ब्लू लाइन बन जाती है. The word compares every word of the document with the words in its dictionary. If the typed word does not match with the word in its dictionary, it is considered as misspelled and is underlined with red wavy line. अब वर्ड की भी अपनी एक डिक्शनरी होती है, तो आप जो भी वर्ड टाइप करते हैं अगर वो उसके डिक्शनरी में नहीं हुआ तो वो उसको रेड वेवी लाइन से दिखाएगा ताकि आप उसको क्या कर दो, करेक्ट कर दो. अगर आपके हिसाब से वो करेक्ट है तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर वो रेड वेवी लाइन आपको दोबारा ना दिखे. To do so, following the given steps. Step 1, right click the underlined word to see suggested corrections. Step 2, a shortcut menu opens displaying various suggestions. Step 3, select the correct spelling from the suggestion list. Step 4, Word automatically replaces the incorrect spellings with the selected option. अगर आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है जो कि अंडरलाइंड है रेड वेवी लाइन से, तो आप सबसे पहले जाकर के उस पर राइट क्लिक करेंगे. देन आपके सामने शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगा जो आपको करेक्शंस दिखाएगा, सजेशंस दिखाएगा. आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट स्पेलिंग को फ्रॉम द सजेशन लिस्ट. फिर वर्ड जो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा इन द इनकरेक्टेड स्पेलिंग विद द सेलेक्टेड ऑप्शन. क्विक टिप्स टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर: F7 आप प्रेस करेंगे. Subject integration: type the following sentence in MS Word, then use the spelling and grammar tool to correct the mistakes. तो आपको इन सब सेंटेंस को टाइप करना है MS Word में, फिर आप चेक करेंगे अपनी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को. Now thesaurus. A thesaurus lists words that have similar meanings, synonyms or opposite meanings, antonyms. MS Word has an inbuilt thesaurus to suggest synonyms or antonyms for the selected word. To use the thesaurus, follow the steps given below. Step 1, select the word for which you want thesaurus and click the review tab. Step 2, click the thesaurus button in the proofing group. Step 3, use the thesaurus task pane on the right to select a synonym or an antonym of the selected word. Step 4, click the arrow next to the word you choose and click insert. थिसॉरस जो होते हैं ये आपके सिमिलर वर्ड मीनिंग आपको दिखाते हैं या फिर आपको उसके ऑपोजिट मीनिंग दिखाते हैं. ठीक है, इनके पास क्या होती है, एक लिस्ट होती है. MS वर्ड में इनबिल्ट थिसॉरस होते हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं किसी वर्ड का सिनोनिम या फिर एंटोनिम. तो अगर आपको थिसॉरस यूज़ करने हैं तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, इनको फॉलो कर लेते हैं. सबसे पहले आप उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे जिसका भी आप थिसॉरस चाहते हैं. ठीक है, और फिर आप रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे. आप यहाँ पे थिसॉरस बटन पे क्लिक करेंगे इन द प्रूफिंग ग्रुप. फिर आप यूज़ करेंगे थिसॉरस टास्क पैन को ऑन द राइट टू सेलेक्ट अ सिनोनिम या फिर कोई भी एंटोनिम जो भी आप चाहते हैं. उसके बाद आप क्लिक करेंगे एरो नेक्स्ट टू द वर्ड जिसको भी आपने चूज किया था और उसके बाद आप क्लिक करेंगे इंसर्ट पे. नाउ क्विक टिप्स: वी कैन ऑल्सो एसेस द थिसॉरस बाय राइट क्लिकिंग ऑन एनी वर्ड एंड चूजिंग सिनोनिम्स. इसको आप किसी भी वर्ड पे जिसको भी आप उसका एंटोनिम और सिनोनिम चाहते हैं तो उस पर आप राइट क्लिक करके भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं.
Now word count. The word count feature of a word shows you how many words you have in your document, along with the number of pages, characters, lines, and even paragraphs. The easiest way to get the word count of your entire Word document is to simply check the status bar, as the word count is displayed by default. You can find the word count to the left of the status bar at the bottom of the window. Alternatively, to get the word count, click the review tab and then choose a word count in the proofing group. अब वर्ड काउंट क्या होता है? वर्ड काउंट एक फीचर होता है वर्ड का जो आपको शो करता है कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं अपनी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने वर्ड काउंट को जानना, तो आपका सबसे ईजिएस्ट वे है आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सिंपली चेक कर सकते हैं स्टेटस बार पे। स्टेटस बार पे भी आपको आपके नंबर ऑफ वर्ड्स डिस्प्ले होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और आप इनको फाइंड भी कर सकते हैं टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेटस बार, जो कि आपको विंडो के ही बॉटम में मिल जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप वर्ड काउंट को देखने के लिए आप रिव्यू टैब पे भी क्लिक कर सकते हैं और फिर उसके बाद वर्ड काउंट को चूज़ करेंगे, जो कि आपको प्रूफिंग ग्रुप में मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं, नीचे स्टेटस बार पे भी देख के और वर्ड काउंट प्रूफिंग ग्रुप में भी जा करके। Computer etiquette: do not misuse a computer. Use it for learning various applications of computer in different field. कंप्यूटर का बच्चों हमें कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमारे बहुत काम आता है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस को हमें लर्न करना चाहिए और हमें कंप्यूटर की वैल्यू समझनी चाहिए। Tricky terms: editing, making changes in the text, clipboard, reverse place that stores most recently cut copied data temporarily, synonyms, a word with similar meaning, undo to bring back to the original stage or reverse the action. तो चिल्ड्रन, हम MS वर्ड के बारे में तो ऑलरेडी पहले ही जान चुके थे। इस चैप्टर में हमने जाना कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, कैसे उसे मॉडिफाई करते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.